Good morning, students. It is class number 9 of chapter number 1, which is sets. In previous class, we had done exercise 1.6, which was based on the practical problems of union and intersection. Now, continuation with with this topic, I am doing some practical problems based on union and intersection from miscellaneous examples. Actually, in miscellaneous examples, we have two types of questions. First one is the practical problems on union and intersection, and another one is based on the properties of sets. Firstly, I am doing the practical problems related to the examples which is related to the practical problems, and the questions which are related to properties of sets we will do the later part of this chapter. Now let us see the examples based on some more examples based on union and intersection of sets. Yes, it is example number 32. These are miscellaneous examples. Example number 32. A market research group conducted a survey of 1,000 consumers and reported that 720 consumers like product A and 450 consumers like product B. What is the least number that must have liked both the product? अब क्वेश्चन है व्हाट इज द least number that must have liked both the product. Means we have to get least number of A intersection B. Both product means A intersection B. So now we have, according to the question, in a market research group conducted a survey of 1,000 consumers. That means we have number of universal set is 1,000 and reported that 720 consumers like product A. So number of A is 720 and 450 consumers like product B. So that is number of B is 450. Now we have to get least number of persons that must have liked both the products, and I mean number of A intersection B. तो अब देखिए हमने लीस्ट नंबर निकालना है. तो एज यू नो दैट वी हैव अ फॉर्मूला नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. फर्स्ट लीस्ट नंबर ऑफ दिस, यानी कि इसको कम करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ यूनिवर्सल यूनियन जो होगा वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए. देखो अगर ये, क्योंकि ये टर्म जो है हमारे पास माइनस में, तो जितनी भी बड़ी वैल्यू मैं इसमें से इनमें से माइनस करूंगा तो ये वैल्यू छोटी होती जाएगी. बट अगर मुझे इसकी लीस्ट निकालना है, इसको कम से कम निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो यही मैंने लिखा है कि फॉर लीस्ट नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वी मस्ट हैव नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज मैक्सिमम. ये मैक्सिमम होना चाहिए. और मैक्सिमम कोई भी यूनियन किसके इक्वल हो सकता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल. और यूनिवर्सल सेट हमारे पास कितना है, 1000 दिया हुआ है. तो नाउ अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से 1140 माइनस 1000 विच इज 170. तो दैट इज number of A intersection B is 170. So least number of least number of A intersection B is equal to 170. So that is the question. And now example number 33. Out of 500 car owners investigated, 400 owned car A and 200 owned car B. 50 owned both A and B cars. Is this data correct? ये तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि क्वेश्चन है कि आउट ऑफ 500 कार ओनर इन्वेस्टिगेटेड, इनका इन्वेस्टिगेशन हुआ हमारा, तो कितना है, 500 था. इनका यूनिवर्सल सेट है तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट इज 500. 400 ओन्ड कार ए तो नंबर ऑफ ए इज 400 and 200 owned car B, so number of B is 200 and number of A intersection B is 50. Now applying this formula, number of A union B is number of A plus number of B minus number of A intersection B, so that is 400 plus 200 minus 50, 550. अब देखो इसमें 550 यूनियन जो है हमारे पास आ गया 550, नंबर ऑफ A union B is 550. बट हमारे पास तो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ 500 का हुआ था, तो जो कि पॉसिबल नहीं है. तो हमेशा जो है नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट जो है या तो वो यूनियन के इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट या तो हमारे पास यूनियन के इक्वल होता है या उससे ग्रेटर होता है.
तो इस वाले केस में तो देखो हमारे पास जो है जो यूनियन है वो जो है नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट से ग्रेटर आ गया, रिवर्स आ गया, तो विच इज नॉट पॉसिबल, हेंस गिवन डेटा इज इनकरेक्ट. नाउ next example, which is example number 34, most important one. A college awarded 38 medals in football, 15 in basketball, and 20 in cricket. In these medals, if these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, how many received medals in exactly 2 of the 3 sports? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं फॉर्मूला और दोनों फॉर्मूले और जो वेन डायग्राम्स हम क्वेश्चन करते हैं इन दोनों को ही कॉम्बिनेशन से हम इस क्वेश्चन को करेंगे. देखिए कैसे. ये है क्वेश्चन आपका एग्जांपल नंबर 34. जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है एग्जांपल 34 इज अ कॉलेज अवार्ड 38 मेडल्स इन फुटबॉल. तो नंबर ऑफ फुटबॉल इज 38 एंड 15 इन बास्केटबॉल. तो नंबर ऑफ बास्केटबॉल इज 15 and 20 in cricket, number of C is 20. अब आगे दिया हुआ है कि if these medals went to a total of 58 men only, net 58 men, तो इसका मतलब नंबर ऑफ F यूनियन B यूनियन C, F फुटबॉल बास्केटबॉल क्रिकेट, इनका यूनियन जो है वो 58 है. 58 मेडल्स मतलब सबको मिला के मिला. एंड ओनली 3 men got medals in all the 3 sports. तो दैट मीन्स नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज 3. तो दैट मीन्स अब देखो मैं इसके अकॉर्डिंगली एक वेन डायग्राम बनाता हूँ. तो वेन डायग्राम बनाया हमने ये इसमें हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है एंड ये फुटबॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बास्केटबॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब इसमें A B C D E F G डिफरेंट पोर्शन हमने ले लिए. इसमें A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ओनली फुटबॉल खेलते हैं. C रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि बास्केटबॉल, ओनली बास्केटबॉल. और जो G रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओनली क्रिकेट खेलते हैं. जबकि अगर हमसे पूछा जाए कि जो जितने फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल तो हमारे पास A B D E है, ऐसी बास्केटबॉल वाले B C E प्लस F है, ऐसी क्रिकेट वाले जो है हमारे पास D प्लस E प्लस F प्लस G है, इस तरह का है. और ओनली जैसे ओनली फुटबॉल वाला A है, ओनली बास्केटबॉल वाला C है, ओनली क्रिकेट वाला G है. जबकि B प्लस E क्या है, जो फुटबॉल एंड बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं. ऐसी D और E क्या है, जो कि फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं. ऐसी ही E प्लस F क्या है, जो बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं. और E रिप्रेजेंट कर रहा है जो तीनों को खेलते हैं. तो दैट मीन्स जो नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है विच इज़ 3, और दैट मीन्स दैट इज E इज इक्वल टू 3. तो E जो है हमारे पास 3 है. नाउ फॉर्मूला है हमारे पास ये यूनियन का. जब 3 सेट्स होते हैं तो 3 सेट्स का फॉर्मूला हमने इसको डिराइव किया था पहले भी. तो नंबर ऑफ F यूनियन B यूनियन C इज नंबर ऑफ F प्लस B प्लस C माइनस ये और प्लस नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. ये हमने फॉर्मूला डिराइव भी किया था और आपको याद भी होगा. तो अप्लाई करो अब. नंबर ऑफ F यूनियन B यूनियन C विच इज़ 58. नंबर ऑफ F वाला 38 है, नंबर ऑफ B वाला 15 है, नंबर ऑफ C वाला जो है 20 है. अब नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन B, F और B का इंटरसेक्शन. तो F और B का इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट F और B में क्या है, B प्लस E. ये B प्लस E लिख दिया. ऐसी B इंटरसेक्शन C, तो B इंटरसेक्शन C में हमारे पास कौन सा है, E प्लस F. एंड C इंटरसेक्शन F में हमारे पास D प्लस E है. और ये जो था हमारे पास ये क्या था, E, दैट इज E. तो देखो अब इसमें 38 प्लस 20 58 से 58 कैंसिल. तो ये जो है ये नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव, B प्लस E प्लस F T प्लस E, और ये इधर जाके माइनस E इजकल टू इधर आ गया 15. अब इसमें B प्लस D प्लस F, B प्लस D प्लस F इजकल टू कितना हो जाएगा 15 और माइनस E प्लस E 2E. तो 15 माइनस 2 इंटू 3 विच इज 15 माइनस 6 9. अब B प्लस D प्लस F क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, B रिप्रेजेंट कर रहा है जो एग्जैक्टली 2 में मेडल ले रहा है, और D रिप्रेजेंट कर रहा है जो एग्जैक्टली इन 2 में मेडल ले रहा है. और एग्जैक्टली मीन्स अगर हमसे पूछा जाए कि बास्केट और फुटबॉल वाले कितने हैं तो B प्लस E है, बट एग्जैक्टली 2 में क्या है, ओनली B है. ऐसे एग्जैक्टली इन दोनों में क्या है, D है.
इन दोनों में एग्जैक्टली एफ है। तो क्वेश्चन वाज हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। तो 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, तो दैट मीन्स वी हैव टू गेट बी प्लस डी प्लस एफ। तो यही हमने निकाला है बी प्लस डी प्लस एफ विच इज 9। हेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स इज 9। अब इससे रिलेटेड मैं एक और आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, इन पे बेस्ड आपने अब क्वेश्चंस मैं बताता हूँ कौन कौन से करने हैं। उससे पहले देखो एक क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। इसमें जैसे जैसे क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 इज इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल। तो मैं वेन डायग्राम से कर रहा हूँ, 60 पीपल का सर्वे है तो यूनिवर्सल सेट इज 60। It was found that 25 people read newspaper H, 26 T, 26 he I, and 9 read both H and I, 11 H and T, 8 T and I. 3 read all the 3 newspaper. Find the number of people who read at least one of the 2 newspapers, at least one of the newspaper, and the number of people who read exactly one newspaper. ये हमने 2 आंसर्स निकालना है हमने। तो अब देखिए इसमें कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। तो ये एच है, टी है, आई है, 3 काइंड ऑफ न्यूज़पेपर है। इससे हमने वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो एच वाले हैं हमारे पास बी ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई विच इज़ 25। न्यूज़पेपर टी वाले हैं हमारे पास 26 रीड न्यूज़पेपर टी, तो यानी दैट मीन्स बी सी ई एफ इज 26। ऐसे ही हमारे पास आई वाले हैं, हमारे पास कितने आई है हम इधर 26 एंड 26 ही आई भी है, तो डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी दैट इज 26। फिर आगे क्वेश्चन है 9 रीड बोथ एच एंड आई। एच एंड आई 9 है तो डी प्लस ई विच इज़ 9। ऐसे ही एच एंड आई 11 रीड बोथ एच एंड टी। एच एंड टी 11 है तो बी प्लस ई इज 11 एंड 8 रीड बोथ टी एंड आई। टी एंड आई मतलब ई प्लस एफ विच इज 8 एंड 3 रीड ऑल द न्यूज़ पेपर्स, तो इट मीन्स ई इज इक्वल टू 3। ये तो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैंने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया। अब पहले मैं सभी इनकी वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ, जो हमारे पास अननोन वैल्यूज़ हैं ए बी सी डी सभी ये निकाल लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम 4th and 7th ई की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो ई की वैल्यू 3 रख दिया तो डी इज़ 9 - 3 विच इज़ 6। ई हमारे पास 3 है ही। फिर फ्रॉम 5th and 7th इसमें मैं ई की वैल्यू 3 रख देता हूँ, तो 11 - 3 8, तो बी इज़ 8। एंड फ्रॉम इसमें 6th and 7th से ई की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो एफ इज़ 5। अब इसमें पुट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट ए अभी हमने निकाला नहीं, बी इज़ 8, सी हमारे पास अभी ए प्लस बी पहले इससे लिख लेते हैं, थर्ड से निकाल लेते हैं। तो डी इज़ व्हाट इज़ डी इज़ 6 प्लस ई इज़ 3 प्लस एफ इज़ 5 एंड प्लस जी वी हैव टू गेट 26। तो जी इज इक्वल टू 26 - 5 और 3 8 और 6 14, तो ये आ गया हमारे पास 12, जी इज 12। फिर फ्रॉम सेकंड बी वी हैव टू गेट सी इज व्हाट इज सी बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। तो अभी सी रहने देते हैं। बी के लिए कितना था हमारे पास, बी तो 8 है ही, 8 प्लस सी एज इट इज, ई इज 3, एफ अभी हमने निकाला विच इज़ 5 इज इक्वल टू 26। तो सी इज 26 माइनस 8 8 16, तो ये आ गया 10। सी इज 10 एंड फ्रॉम फर्स्ट
From first A we have to get B. B is, what is B? B 8 and C 10 और D हमने निकाला था 6 is 25. तो A is 25 माइनस 10 से 16 और 8 24. तो A is हमारा A is 1. Now question is A we have to get B is 8, B is 8, C was 10, D is 6. ठीक है, A is 1. Now question is first part question is the number of people who read at least, number of people who read at least one of the newspaper. अब एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट मीन्स कम से कम एक तो पढ़ते हैं जो, तो कम से कम एक पढ़ने वाले, तो हमारे पास कम से कम एक पढ़ने वाले कितने हैं? कम से कम एक पढ़ने वाला है ए और सी और जी, दैट मीन्स ए प्लस सी प्लस जी. ये तो है एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, ये वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले. एटलीस्ट बोला है तो वो वन भी पढ़ सकता है, दो भी पढ़ सकता है, तीनों भी पढ़ सकता है. अब दो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले देखते हैं कितने हैं. दो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जो एग्जैक्टली दो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दो न्यूज़पेपर वाले जो हैं बी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस एफ. और जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तीनों न्यूज़पेपर इज ई प्लस ई. तो दैट मीन्स ए बी सी डी ई तीनों, और जो तीनों एक जो एग्जैक्टली वन पढ़ते हैं तो ए प्लस सी प्लस जी, दो एग्जैक्टली दो पढ़ते हैं तो बी प्लस डी प्लस एफ, और जो तीनों पढ़ते हैं वो आ गया ई. तो इट मीन्स ए बी सी डी ई एफ ई एफ और जी, वर इज जी? ए प्लस सी प्लस जी, इट वॉज ए प्लस सी प्लस जी. हाँ, तो ए प्लस सी प्लस जी, ए प्लस सी प्लस जी वो हैं जो एग्जैक्टली वन पढ़ते हैं, बी डी एफ जो हैं वो जो दो पढ़ते हैं, और ई जो है तीनों पढ़ते हैं. तो एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर मतलब जो एक पढ़ने वाले हैं, दो पढ़ने वाले, तीन पढ़ते हैं, यानी कि सभी की वैल्यू निकालनी है. तो सभी की वैल्यू निकाल लेते हैं, सबको ऐड कर देते हैं. सबको ऐड करेंगे 10 11 और 21 23 और 5 28 और 8 36 और 6 36 and 6 42 और 3 यस इट इज़. देखो इसमें एच में था एक मिस्टेक हो गई थी इसमें. देखिए अब इसमें ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, मतलब एच में ए बी डी ई, जबकि मैंने ए बी सी डी लिख दिया था, तो ए बी सी डी नहीं था, ए बी डी ई. तो अब इसमें बाकी सब सही है. तो फ्रॉम फर्स्ट ए एज इट इज़, बी इज़ 8, डी इज़ 6, ई इज़ 3 इज इक्वल टू 25. तो ए इज इक्वल टू 25 माइनस 17 विच इज़ 8. तो नाउ नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर. तो एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर के लिए ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि एटलीस्ट वन ऑफ मतलब क्योंकि एक न्यूज़पेपर भी पढ़ सकता है, दो भी पढ़ सकता है, तीनों भी पढ़ सकता है. तो ये तो एक न्यूज़पेपर वाले हैं, ये दो न्यूज़पेपर वाले हैं, ये तीनों न्यूज़पेपर वाले हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. तो एक पढ़ने एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर वाले हैं हमारे पास ए प्लस सी प्लस जी, और एग्जैक्टली दो पढ़ने वाले हैं बी प्लस डी प्लस एफ, और तीनों जो पढ़ता है ई. तो इट मीन्स ये हमने सबको ऐड करना है. तो सबको ऐड करेंगे तो ए 8 10 18 और 12 30 35 और 8 43 और 6 49 और 3 52. तो 52 are the number of people who read at least one of the newspaper. And second part is, what is second part? The number of people who read exactly one newspaper. Number of people who read exactly one newspaper.
which is exactly 1 means a plus c plus g, which is a plus c plus g. Or what was a is 8, c, what is c is 10, or g is 12. So it is 18 plus 12 30. That's it. So now based on these questions, you have to do question number 13. You have homework, which is question number 13, 14 and 16 based on these. और इन्हीं से रिलेटेड मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा इसके बाद. तो अभी इस क्लास में आपने क्या करना है कि पहले सारे सॉल्व एग्जांपल करोगे जो मैंने करवाए हैं सारे, पहले अपने आप करोगे, पहले समझ लोगे, फिर अपने आप करोगे. और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 16 करोगे. दैट्स इट फॉर दिस क्लास.